شاہپور میں تیز رفتاری کے باعث مزدہ ٹرک سے ٹکرا گیا۔ حادثے کے نتیجے میں اصغر نامی ایک شخص جاں بحق ہو گیا اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ نعش اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اکاڑا کے نواحی گاؤں میں 10 سالہ بچی کے قتل کا معاملہ، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم عرفان نے 10 سالہ تنزیلہ کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا، جس کے دوران معصوم بچی دم توڑ گئی تھی۔ غازی کے نواحی گاؤں میں افسوسناک واقعہ، تالاب کے پانی میں ڈوب کر 2 بچے دم توڑ گئے۔ والدین غم سے نڈھال، بچوں کی تدفین آبائی گاؤں میں کر دی گئی۔ اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ دلخراش واقعے پر علاقے کی فضا سوگوار۔ کوٹ چھوٹا کے نواحی علاقے بستی دوسا میں رشتہ کے تنازع پر فائرنگ سے 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کی شناخت غلام اکبر اور نوید احمد لاشاری کے نام سے کر لی گئی۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو ابتدائی امداد دینے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔ اور ڈی پی او اکاڑا کی زیر صدارت کرائم کی روک تھام کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد۔ ایس پی انویسٹیگیشن سمیت تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ ڈی پی او فرقان بلال کا کہنا تھا کہ علاقے سے جرائم کے خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں، ڈھرکی میں سیلاب متاثرین کو تاحال مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے راہب سومرو سے۔ جی راہب، آگاہ کیجیے گا۔ جی، اس وقت موجود ہیں ہم ڈہر کی مونو ٹیکنیکل کالج کے ساتھ جو کالونی۔ اس وقت ہم موجود ہیں ایک گھر میں جو حالیہ 2 مہینے بارشوں نے ان کے گھروں کو مسمار کر دیا۔ اس وقت یہاں پر موجود ہیں جو تقریباً 1.5 فٹ تک ان کے گھروں میں پانی جمع ہے۔ ان کی دیواریں گر چکی، ان کے گھروں کی چھتیں گر چکی ہیں اور ان کا سامان، جو گھروں کا سامان ہے، وہ کھلے آسمان کے تلے پڑا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں ان گھر کے مکینوں کے ساتھ، تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر ان کی اب تک داد رسی کیوں نہیں ہو سکی۔ واسطے میری مدد کرو، سنے جھگے دے پانی ایسے کھڑا آسا کڈے سے یہ کتے سے تاکو دیو مدد، اللہ دے واسطے دیو مدد کرے سوتا ساڈے گھر ہی بن سن، ساڈا کچھ تھی سی۔ پانی کھڑا رہ گیا، آپ نے آپ مدد کڈے سے مہربانی کرتے۔ ساڈیاں دیواراں ہون بھی کریا لین، اساں کو خطرہ تھی سکدے، بالیں تے گر بھی سکدین۔ اساں وڈے مشکل وچ سے ساڈی مہربانی کرتے، ڈی سی کو ساڈا اپیل ہے، ڈی سی تا ساڈا مہربانی کرتے گورنمنٹ ساڈی مدد کرے، اساں اپیل کریں دے سے ہاتھ جوڑتے اساں کہندے کھڑے۔ یہ تھی گے جھگے ڈھائی پین سارا کو ڈھائی پین، خدا دے واسطے ساڈی مدد۔ جو یہ جھگیوں میں رہنے والے ہیں، یہ اپنی مدد آپ جو ہے اس وقت اپنے گھروں کی تعمیر تو نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا بھی جو ہے پیٹ بھرنے کے حوالے سے بھی ہم روزانہ جو ہے ہم اپنی محنت میں لگے رہتے ہیں۔ ابھی جو ہمارے غریبوں کے گھر گرے ہیں، نہ ہم بچوں کو تعلیم دلوا سکتے ہیں، نہ ہم اپنے گھر بچوں کو۔ اکاڑا کے نواحی گاؤں میں 10 سالہ بچی کے قتل کا معاملہ، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم عرفان نے 10 سالہ تنزیلہ کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا، جس کے دوران معصوم بچی دم توڑ گئی تھی۔ بچی کے والد کا کہنا ہے کہ ملزم عرفان اور اس کے بھائی نے مل کر بچی کو قتل کیا۔ فتح جنگ میں شہر انتظامیہ کی مبینہ ملی بھگت سے تجاوزات کی بھرمار کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
اہل علاقہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ بار بار شکایات کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی، متعلقہ اعلیٰ حکام فوری نوٹس لیں۔ سیالکوٹ میں چودھری شاہ نواز نامی کیبل آپریٹر کے قتل کا معاملہ، پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کو شناخت کر لیا۔ تھانہ رنگ پورہ میں 3 نامزد اور 2 نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے گا۔ نارنگ منڈی میں محلہ رحمان پارک اور امانت پورہ میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کے باعث اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں قمر گلاٹی کی اس رپورٹ میں۔ نارنگ منڈی کے محلہ رحمان پارک اور محلہ امانت پورہ میں اب نکاس کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ گھروں میں سیوریج کا گندا اور گلیز پانی داخل ہونے سے سانس لینا بھی دشوار ہو چکا ہے۔ انتظامیہ کے مجرمانہ غفلت سے 1500 گھرانے شدید عذاب میں مبتلا ہیں۔ شہریوں نے چودھری ناصر محمد راولو، چودھری وسیم ہنجرا اور ملک فیاض کی قیادت میں شدید احتجاج کرتے کہا کہ آبی نکاس کا بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے سیوریج کا غلیظ اور دفن شدہ پانی بیماریوں کا باعث بن رہا ہے، ڈینگی پھیلنے کا خطرہ ہے۔ رکن سپاہی اسمبلی چودھری عمر آفتاب ڈیلو نے آبی نکاس کے لیے نالے کی تعمیر کا افتتاح کیا، لیکن بعض ذمہ دار اپنی زمینوں سے نالے کی تعمیر کا معاوضہ طلب کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کئی ماہ سے کام رکا ہوا ہے اور 1500 گھرانے شدید عذاب میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ سے سخت نوٹس لینے اور پانی کے نکاس کا فوری انتظام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں شہری کیا کہتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ متاثرین جی مان پارک کے دو محلے کا پانی نکلتا ہے تے اے ایم پی اے صاحب عمر آفتاب ڈیلو صاحب نے یہ نالا جڑا بنوایا ہے، لیکن اگے جڑا نا ایک قلعے کا نالا جڑا نا وہ ڈک چھڑیا ہے، جنہ کی کوئی زمین ہے ایک قلعے کا نالا جڑا نا وہ بننے والا ہے، وہ جدوں مرضی بند دیں اگوں، جدوں انہوں نے ضرورت ہوں پانی کی ادو کھول لیں نے۔ یہ ہون بند ہوا ہے تو ہوں آ حال ہے کہ سارے جڑے نے بچے وہ نہ سکول جا سکتے ہیں نہ مسجد جا سکتے ہیں، بڑے جڑے نے جوان جڑے نے وہ تہجد کے ٹائم یا بوڑھے جڑے نے وہ جا نہیں سکتے، اس طرح ہی بس نہ گھروں کے جڑا نا اسی بند ہو کے رہ گئے ہیں۔ 1500 آبادی رحمان پارک کی آبادی کا سارا مین رستہ ہے، پچھلے 10 سالوں کا رستہ درینا جا بند پیا، سارے بچے جڑے چلے نے پانی کے، نہ کوئی حال اتنے رہن کا، نہ جین کا، نہ کوئی صفائی کا انتظام ہے، نہ کوئی آتا ہے اتنے۔ بار بار کمیٹی جا کے کہتے سارے کو بجٹ کو نہیں، انہوں نے کہا جنریٹر لا دو، سارے بجٹ کو نہیں ہے، بجٹ منظور ہوئے گا تو جنریٹر لاؤ گے، اسی کہڑے پاسے جائیے ہوں، سارے بچے جڑے اتنے نالے ڈگ ڈگ ڈبن رہے ہیں۔ حیدرآباد پولیس ہیڈ کوارٹر میں اے ایس پی کینٹ کی پریس کانفرنس، جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس حوالے سے مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ مجھے کہا کہ لینا جو آپ کے ساتھ لوگ موجود تھے ان کو بھی بتائیے گا، ان کو بھی ہمیں نام بھیجیے گا۔ میں نے کہا سر ہم نے لسٹیں بنا لی ہے جو بھی موجود تھے، جن کو چھوٹے موٹے لگی تھی، ان کی الگ انجری سائڈ رپورٹ بھیجی گئی ہے، ان کو سراہا جائے گا۔ یہ ایز مچ پولیس آفیسرز ہیں جتنے میں ہوں، نقصان نہ پہنچے، اور آگے کافی انسٹنسز ایسے تھے کہ یہ میرے آگے آئے تاکہ مجھے کوئی زیادہ چوٹ نہ لگے، سو ان کو سراہنا مجھ سے زیادہ۔ پنڈی گھیب میں پی ٹی آئی ضلع اٹک کے صدر قاضی احمد اکبر نے ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حقیقی آزادی مارچ کا مقصد پاکستانی قوم کو امریکہ کی غلامی سے نکالنا ہے۔ عمران خان کی کال پر ضلع اٹک سے پی ٹی آئی کے 4500 کارکن میدان میں نکلیں گے۔ ضلعی جنرل سیکرٹری احمد نواز، تحصیل صدر ملک حامد اقبال اور شاہد لطیف نے بھی خطاب کیا۔ ڈی پی او اکھاڑا کی زیر صدارت کرائم کی روک تھام کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایس پی انویسٹیگیشن سمیت تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ ڈی پی او فرقان بلال نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں میں مزید تیزی لانے کا کہا۔ ٹھیکری پہرا کے نفاذ کو یقینی بنائیں، زیر تفتیش مقدمات اور پینڈنگ ریفرنسز کو جلد از جلد حقائق کے مطابق یکسو کریں، سبزی منڈی اور غلہ منڈی کے اطراف میں پولیس گشت کو مؤثر بنائیں۔
सरगोदा में RPO मोहम्मद अजहर अकरम का एजुकेटर्स पॉलिस पब्लिक हाई स्कूल का दौरा। स्कूल तलबा और तलबात ने मोहम्मद अजहर अकरम का वालिहाना इस्तकबाल किया और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। RPO ने क्लास रूम्स, कंप्यूटर्स लैब्स, लेबॉर्ट्रीज और खेलों के मैदान का मुआयना किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने असातिज़ा को हिदायत जारी की कि क्वालिटी एजुकेशन गैर नसाबी सरगर्मियों में भरपूर तवज्जो दी जाए और शहदा के बच्चों को तालीम की मुफ्त फराहमी यकीनी बनाई जाए। पिंडी घेप के नवाही इलाके में अमन कमेटी के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से जुलूस निकाला गया। बानी अंजुमन ताजरान पिंडी घेप के सदर मलिक नज़ाकत समेत दीगर ने शिरकत की। आपको बताएं कि पिंडी घेप के नवाही इलाके में अमन कमेटी के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से जुलूस निकाला गया। बानी अंजुमन ताजरान पिंडी घेप के सदर मलिक नज़ाकत समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। फ़तेह जंग में महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी के डिवीजनल नायब सदर सरदार नासिर खान समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। नात खां हज़रात ने बारगाह रसालत माब में हदिया अक़ीदत पेश किया। सरदार नासिर खान ने नात खान में इनामात तकसीम किए। नारंग मंडी में जामिया मस्जिद में हाफिज राना ऑन अलबारी की ज़ेर सरपरस्ती सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मकाम सहाबा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं कमर गोलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी की मरकज़ी जामिया मस्जिद अहले हदीस रेल बाज़ार में सालाना फ़कीदुल मिसाल सीरतुन्नबी व मकाम सहाबा कॉन्फ्रेंस बसीसा इस्तेकाम पाकिस्तान जानशीन हाफिज राना ऑन अलबारी की सरपरस्ती में मुनक़्क़द हुई। कॉन्फ्रेंस की सदारत शेखुल हदीस हाफिज मोहम्मद इलियास असरी आफ गुजरावाला ने की। मियाँ मोहम्मद जमीर की क़ियादत में रात गया तक कॉन्फ्रेंस जारी सारी रही, जिसमें खुसूसी खिताब प्रोफेसर सैफुल्लाह खालिद सदर तहरीक अल्लाह अकबर पाकिस्तान, मुमताज़ अहले हदीस रहनुमाओं मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी, मौलाना आसन हज़ीर महमदी ने किया और सीरतुन्नबी व मकाम सहाबा पर और असर तकरीर की गई, जिसे हाज़रीन महसूस हुए। कॉन्फ्रेंस में इंतज़ामी अमूर के फ़रज़ हाजी अब्दुल्ला तौहीद, सहेल अहमद भट्ट, नईमुल्लाह सईद सल्फ़ी, कारी मोहम्मद ताहिर बलगारी, साजिद सईद सल्फ़ी, डॉक्टर उमर शेरवानी ने अंजाम दिए, जबकि अंजुमन शहरिया के ताहिया चेयरमैन सरदार नईम रज़ा मान, सेठ सईद फ़ारूकी व दीगर उहदेदारान ने भरपूर शिरकत की और रात गया तक महफिल जारी व सारी रही। कराची के इलाके मलीर में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान तशद्दुद का मामला। PTI सिंध के सदर अली ज़ैदी का कहना है कि बिलाल गफ़ार पोलिंग कैंप में गए थे, जहां पर उन पर पीपल्स पार्टी के सलीम बलोच और सलमान मुराद ने हमला किया। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। मलीर के अंदर हो रहा है इस वक्त ये MPA सलीम बलोच और एक पीपल्स पार्टी के कारकुन है सलमान मुराद, वो सारे थानों में सारे पोलिंग स्टेशन में जाके उनके साथ पुलिस की 2 स्क्वाड भी हैं और उनके साथ उनके गुंडे भी हैं, वो सारे उधर जाके पोलिंग स्टेशनों में घुस के ठप्पा लगा रहे हैं। और ये जो इंसिडेंट बिलाल गफ़ार के साथ उन्होंने किया है, जो बिलाल गफ़ार को ज़ख्मी किया है, वो ये चाहते हैं कि ये सारा अटेंशन डाइवर्ट हो जाए ताकि वो सुकून से जाके वहाँ पे अपनी धांधली कर सकें। ये मलीर के अंदर इस वक्त बहुत शदीद किस्म की धांधली हो रही है। और मैं कल रात को गया था RO के साथ, मेरी मुलाकात हुई थी बरवई साहब के साथ। उनको मैंने कहा था कि आप अगर कानून करें सबके लिए बराबर करें, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस वक्त सिंध की लॉ इन्फोर्समेंट मलीर के अंदर रिगिंग रोकने में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मलीर। गाजी के नवाही गांव में अफसोसनाक वाक़या, तालाब के पानी में डूबकर 2 बच्चे दम तोड़ गए। वालिदैन गम से निढाल हैं। बच्चों की तदफीन आबाई गांव में कर दी गई। अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। दिलखराश वाक़े पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार है। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं मुल्तान हल्का N157 ज़िमनी इलेक्शन में वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। शहरियों की कसीर तादाद ने हक के राय दही का इस्तेमाल किया। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना असलम से। जी राना असलम, बताइएगा इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया।
जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान के एन ए 157 हल्का में जो है वो सियासी दंगल आज शोरोताब से जारी रहा। शहरियों की खासी तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशन पर मौजूद नजर आई और शहरी जो है वो अपने कायदीन को, अपने रहनुमाओं को उनकी जीत के लिए बड़े पुरजोश और पुरअज़म दिखाई दिए। इस हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूं कि आज जो है वो दोपहर के औकात में और सुबह के औकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो खुद आज के मुख्तलिफ औकात में जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा करते रहे हैं और पोलिंग स्टेशन के पोलिंग अमल का मुआयना करते रहे हैं। और इसके अलावा ये बताइए कि टर्नआउट कितना रहा है इस इलेक्शन में, मैं वोटों की तादाद? टर्नआउट के हवाले से भी आपको बताता चलूं कि टर्नआउट के हवाले से आज जो शहरियों की बहुत बड़ी जो तादाद थी आज मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रही है और काफी इसके बारे में कहा जा सकता है कि जो बहुत ज्यादा तादाद थी जो शहरियों की उन्होंने वोट कास्ट किए और बहुत मुख्तलिफ औकात में। आपको इसके साथ ये भी बताता चलूं कि मुख्तलिफ औकात में PDM के मुश्तरका कैंडिडेट NA 157 से सैयद अली मूसा गिलानी साहब जो हैं उन्होंने भी आज मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन का दौरा किया है और उन्होंने भी अपना मुआयना किया। सिक्योरिटी के हवाले से भी आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि आज दौरान पोलिंग आज सिक्योरिटी के हवाले से क्या सूरत हाल थी। तो सिक्योरिटी के हवाले से मुल्तान पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी राना असलम ये बताएगा कि इसका मुकम्मल रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट सर अभी गिनती जो है वो इस वक्त वोटों की जारी है और कुछ देर तक जो रिजल्ट है वो मुतवक्किल है और रिजल्ट आने के बाद वो आगाह कर दिया जाएगा। राना असलम आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। घोट में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू और 4 अफराद फरार हो गए। डाकुओं ने थाना डर की पुलिस पर फायरिंग की जिसकी जद में आकर अपना ही एक साथी डाकू हलाक हो गया। हलाक डाकू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खानपुर में तेज रफ्तारी के बाइस मस्ता ट्रक से टकरा गया। हादसे के नतीजे में असगर नामी एक शख्स जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। नाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोट छुट्टा के नवाही इलाके बस्ती दोसा में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त गुलाम अकबर और नवीद अहमद लाशारी के नाम से कर ली गई। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। बहावलपुर में थाना अब्बास नगर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। कत्ल केस में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब स्पेशल शकार एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनूबी पंजाब डॉक्टर शान सादे की पॉलिसी जराइम के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाए। स्कट पुलिस ऑफिसर बाबर बादल निसार के हदायत के मुताबिक बाबर पुलिस जराइम की सरखोबी के लिए दिन रात कोशा है। इस सिलसिले में थाना अब्बास नगर पुलिस ने आम कार्रवाई करते हुए अंधे कद्दत को ट्रेस करके मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया। मुद्दाई मुकदमा खादिम हुसैन ने थाना अब्बास नगर पुलिस को दरख्वास्त दी कि मैं मौजा गदपुर का रिहायशी हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, अरसा तकरीबन 14 साल होने वाले हैं। मेरी शादी को मुसम्मा रुखसाना दुख्तर मुख्तार शाह के साथ हुई थी जिससे मेरे 5 बच्चे हैं। मेरी बीवी को किसी ने अगवा कर लिया है। दरख्वास्त पेश करता हूँ कार्रवाई की जाए, जिस पर थाना अब्बास नगर पुलिस ने अगवा के दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ किया। DSP सदर सरकार तारिक परवेज़ की ज़ेर निगरानी SHO थाना अब्बास नगर आमिर लाल बुखारी और उनकी टीम ने शब रोज़ की मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी को पुरवकार लाते हुए मुकदमा को ट्रेस करके मुलज़म उदाई मुकदमा को गिरफ्तार कर लिया। इंटरोगेशन मुलज़म को निशानदेह अब्दुल्ला की लाश एक कुएं से बरामद हुई। तफ्तीश को जदीद हदूद पर करने की बदौलत सामने आया कि शोर ने ही अपनी बीवी को मारकर उसे कुएं में दफन कर दिया था ताकि कत्ल का इल्ज़ाम किसी और पर साबित हो। जिसके पुलिस ऑफिसर इबादत निसार ने तमाम टीम की कारकर्दगी को लाके तहसीन करार दिया और शाबाश दी। DPO बहावलपुर इबादत निसार ने अपने पैगाम में कहा कि शहरों की जानों से खेलने वाले मुलजमान से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। ऐसी शवकाना वारदात में मुलव्वस मुलजमान को उनके मनफी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। चिश्तिया हल्का PP 241 ज़िमनी इंतखाबात में भी वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया। शहरियों की कसीर तादाद ने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया।
मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। जी ताहिरुल हसन, अपडेट कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया चिश्तियाँ। ज़मीनी इलेक्शन हल्का PP 241 में जो ज़मीनी इंतखाबात का सिलसिला जा वो सुबह से पोलिंग का सिलसिला जो 8 बजे शुरू हुआ था, लेकिन अब जो है वो ख़त्म हो चुका है। अगर बात करें तो तमाम तर जो इलेक्शन की तरफ से पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे उनको अब बंद कर दिया गया है। 168 के करीब जो पोलिंग स्टेशन थे, अब 5 बजे का टाइम था, जैसे ही 5 बजे का टाइम पूरा हुआ है उसी के साथ ही यहाँ पर तमाम तर जो पोलिंग स्टेशन थे उनको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर अगर बात करें तो PTI और नून लीग के जो कारकुनान हैं वो अपनी अपनी पार्टी के साथ वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का रुख कर रहे हैं, और जो पार्टी के लोग हैं और जो पार्टी के रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर अगर बात करें तो पोलिंग स्टेशनों पर के बाहर जो है वो बड़ी तादाद में रुख कर रहे हैं। अगर बात करें तो आज के इलेक्शन में होने वाले इलेक्शन के हवाले से तो यहाँ पर 2,37,046 अफराद ने अपना वोटों का जो है हक़ रायदही का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। और अगर यहाँ पर इसके अलावा अगर बात करें तो अब जो है वो सिक्योरिटी के अदारों को तमाम को जो है वो अलर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के जो एहलकार थे उनको भी हर पोलिंग स्टेशन पर जो है वो अलर्ट कर दिया गया है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तमाम तौर अदारों को जो है वो अलर्ट कर किया हुआ है। और जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जाएगा, ये पोलिंग का जो गिनती का अमल है वो उसको पूरा होता जाएगा। तकरीबन 6-7 बजे के करीब जो है ये गिनती का अमल जो है वो पूरा होगा। उसके बाद जो है रिज़ल्ट आना शुरू हो गए कि आज की जीत का सेहरा जो है वो PTI मैदान मारती है या नून लीग मैदान मारती है। कैंडिडेट के साथ साथ जो कारकुनान हैं वो भी काफ़ी बेताब नज़र आ रहे हैं। तो फैसला जो है वो आज होने जा रहा है। कुछ ही देर में रिज़ल्ट का आना जो है सिलसिला जो है। जहांपुर थाना पुलिस की गफलत के बायस डकैती की वारदातों में मुलविस 2 मुलजिम फरार हो गए। गफलत बरतने पर सब इंस्पेक्टर समेत 3 मुलाजमीन के खिलाफ SHO सिटी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आमिर और फिदा हुसैन नामी मुलजिमान के फरार होने पर SHO सिटी आबिद शरीफ कबूल की मुद्दत में सब इंस्पेक्टर शौकत अली, नायब मुहर्रर अहमद बख्श और संतरी इनायत रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जंग में एहसास कफालत प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। शहरियों का कहना है कि चंद शहर पसंद अनासर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बंद करवाना चाहते हैं। मज़ीद जानते हैं जावेद इकबाल गवास की इस रिपोर्ट में। जंग में मुल्की हालात को मद्देनजर रखते हुए गरीब खानदान की कफालत करने के लिए जंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 40 से ज़्यादा पॉइंट बनाकर रिटेलर्स के जरिए गरीब आवाम तक 7,000 रुपए की किस्त पहुंचाने का सिलसिला जारी है। लेकिन चंद शरारती अनासर एहसास कफालत प्रोग्राम को बंद करने का खुद सख्ता मनसूबा बनाकर रिटेलर्स को परेशान करके इस प्रोग्राम को बंद करवाना चाहती हैं। कितने पैसे मिले ने? पूरे मिल गए? एक गिन लो। इसमें गरीब खवातीन का क्या कहना है? 7,000 रुपए मिला है, कोई नहीं उन्होंने काटे हैं, वो उन्होंने हमें पूरे पैसे दिए हैं। लाइन में ही खड़े थे, इन्होंने हमें 1 मिनट में पैसे दे दिए और 7,000 दिया पूरा, साथ रसीद भी दिया। अच्छा, बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं ना, ये पैसे भी नहीं ले रहे, पूरा 7,000 दे रहे हमें। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। उसके बाद ये जो टीमें आई हुई हैं इस्लामाबाद से और दूसरे अजला से जंग में, ये तमाम जो है रिटेलर्स उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं और ये बेनिफिशरी के साथ ज्यादती कर रही हैं। हमारे ऊपर जो FIR हुई है उसका आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें अदालत से रिलीफ मिला है और वो FIR जो है वो मुकम्मल तौर पर कैंसिल हो गई है। ये मीडिया पर और सोशल मीडिया पर एक प्रोपगंडा किया गया है रिटेलर्स को बदनाम करने के लिए और बिस्क को बदनाम करने के लिए, जिस पर एक्शन हुआ है ये सरासर प्रोपगंडा है और ये वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। संजरपुर में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा, जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर अहले इलाका पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद जानते हैं जाम ज़मीर की इस रिपोर्ट में। संजरपुर में बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ अहलियाने संजरपुर का पुरअमन एहतजाज में सैकड़ों अफराद की शिरकत। एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन का कहना है
سنجر پور کے شہریوں کی طرف سے پنجاب پولیس کو جگانے کی کوشش تھی تاکہ ہمارے سنجر پور میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصہ پہلے تک معاملات بالکل ٹھیک چل رہے تھے. چوری اور ڈکیتی کی واردات اب اتنی بڑھ چکی ہیں کہ وہ چور اور جو ڈکیت ہیں بدماشی پہ اتر آئے ہیں. جو کہ گھروں میں گھستے ہیں, مالی نقصان کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کی تدلیل بھی شروع کر دی گئی ہے. یہ ہماری درخواست ہے ڈی پی او رحیم یار خان سے, آر پی او صاحب سے اور ایس ایچ او کوٹ سبجر سے کہ سنجر پور میں پولیس چوکی لازمی قائم کی جائے اور یہاں پہ جو ہے پولیس کا گشت انتہائی مؤثر کیا جائے تاکہ اس چھوٹے سے قصبے کے امن کو بحال رکھے, تاکہ عام نہایت شہری جو سارا دن اپنے محنت مزدوری کر کے گھروں میں آرام کر سکیں, تاکہ وہ جو ایک پہرے پہ ٹھیکری پہرے پہ لگا دیا جائے ان کو کہ دن میں پہلے اپنی کمائی کریں اور رات کو ٹھیکری پہرے لگائیں. تو یہ میری درخواست ہے کہ یہ جو پنجاب پولیس کا نعرہ ہے کہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی, اس پہ عملی جامہ پہنائیں. ڈی پی او صاحب, ایس ایچ او کوٹ سبجر صاحب کو خصوصی تنبیہ فرمائی جائے کہ یہ سنجر پور کا امن بحال کروایا جائے. ایس ایچ او کوٹ سبجر, پنجاب پولیس, پنجاب پولیس بڑھتی ہوئی چوری ڈکیتی کی وارداتیں. سیون شریف کے نواحی علاقے بھان سعید آباد میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مزید جانتے ہیں محمد علی میمن کی اس رپورٹ میں. سیون شریف کے نواحی علاقے بھان سعید آباد ٹاؤن کمیٹی کے عدم توجہ کے باعث شہر بھر میں سیوریج کے گندے پانی اور کوڑے کچرے ڈیروں کی لپیٹ میں آ گیا. بھان سعید آباد وارڈ نمبر 1 سمیت دیگر وارڈوں میں ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا جا رہا. گلیوں محلوں میں سیوریج کا گندا پانی, کوڑے کچرے کے ڈھیر جمع ہوئے. شہری ٹاؤن انتظامیہ کی نائلی سپروائزر اپنے صفائی کرنے والے عملے سے پیسے لے کر کھلی چھوٹ دے کر کام سے آزاد کیا ہوا ہے, جبکہ ٹاؤن کمیٹی انتظامیہ کے سپروائز پر کرپٹ ہیں. تو وہاں کام کیا ہوگا, وہاں تو گلیوں محلوں میں گندگی ہوگی. شہریوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور دیگر حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نااہل سپروائز کو بھان سعید آباد سے ہٹا کر ہمیں گندگی جیسے عذاب سے بچایا جائے. حجرہ شاہ مقیم میں سیوریج کے پانی سے سبزیاں اگائی جانے لگیں. انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی. شہریوں کا اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ. مزید جانتے ہیں ملک سرفراز احمد کی اس رپورٹ میں. حجرہ شاہ مقیم میں گٹوں کا غلیظ پانی سبزیوں اور دیگر فصلوں کو لگایا جانے لگا. سیوریج کے پانی سے اگائی جانے والی یہ سبزیاں نہ صرف حجرہ شاہ مقیم بلکہ لاہور, فیصل آباد اور اوکاڑا جیسی بڑی سبزی منڈیوں میں فروخت کی جاتی ہیں, جسے کھانے سے ہیپاٹائٹس, ٹائیفائڈ, ڈائریا اور کینسر جیسی موذی امراض پھیل رہی ہیں. شہریوں کی جانب سے متعدد بار احتجاج کر کے لوکل انتظامیہ کو کہا گیا مگر بے سود. ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਜਰੇ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਇਹੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਫਾਇਡ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲੋਕ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ. یہ گٹروں کا غلیظ پانی سبزیوں کو لگ رہا ہے جو موذی امراض پھیلا رہی ہیں, جیسا کہ ہیپاٹائٹس, بخار جیسی بیماریاں لگ رہی ہیں. میونسپل کمیٹی کو کافی دفعہ درخواستیں دے چکے ہیں لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا اس پہ. اللہ حکام سے گزارش ہے کہ اس پر فوری طور پر نوٹس لیا جائے. علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ گٹروں کا پانی سبزیوں کو لگانے کی روک تھام کے لیے فوری ایکشن لیا جائے. لاہور میں سنی تحریک کے زیر اہتمام ٹرانسجینڈر بل کے خلاف مرکز اہل سنت صوبائی سیکریٹریٹ میں اجلاس ہوا. ضلعی صدر محمد شریف الدین قذافی نے صدارت کی. تفصیلات جانتے ہیں جنید اشرف کی اس رپورٹ میں. لاہور میں پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام ٹرانسجینڈر بل کے خلاف مرکز اہل سنت صوبائی سیکریٹریٹ میں اجلاس منعقد ہوا. پاکستان سنی تحریک کے ضلعی صدر محمد شریف الدین قذافی نے اجلاس کی صدارت کی. ضلعی صدر علماء بورڈ صاحبزادہ عبداللہ ثاقب, غلام محی الدین جلالی, شیخ محمد نواز قادری, پروفیسر میاں خلیل احمد, علامہ شفقت جمیل نقشبندی سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی. ضلعی صدر محمد شریف الدین قذافی کا کہنا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد شریف الدین قذافی, ضلعی صدر پاکستان سنی تحریک ضلع لاہور. ہم پاکستان سنی تحریک کے مرکز لاہور سے مخاطب ہے آپ سے. یہاں آج تنظیمی ایک اہم اجلاس بلایا گیا تھا جو تبدیلی جنس کا جو بل پاس ہوا ہے اسمبلی سے, اس کے خلاف جو ایک تحریک چل رہی ہے ملک پاکستان کے اندر,
इस तारीख को हम आगे बढ़ाएंगे और ये जो कानून बना है ये इस्लाम के, पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। हमारा ये मुतालबा है गवर्नमेंट से कि ये कानून जो है या तो ख़त्म किया जाए या इसके अंदर जो मुतनाज़ा शिकें हैं उनको ख़त्म किया जाए। ख्वाजा सराओं के हक़ में कानून बनना चाहिए, लेकिन अय्याश परस्ती, जो अय्याश तबका है, ये उन्होंने अपने लिए बनाया है, ये ख़त्म होना चाहिए। आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मरकज़ में सूबाई सेक्रेटेरिएट में अहम इजलास था। ये ट्रांसजेंडर बिल के ऊपर गौर व फिक्र किया गया और ये तय किया गया है कि इसके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह हम एहतजाजी तहरीक जो है, जो शुरू है पहले से, उसको मज़ीद मुनज़्ज़म करेंगे और उसमें तेज़ी लाएंगे और तब तक ये तहरीक जारी रहेगी जब तक ये बिल जो है हुकूमत वापस नहीं ले लेती। और हमारा ये मुतालबा है कि इसे फ़ौरी सस्पेंड किया जाए और फिर इसमें जो तरामीम उलमा ने दी हैं उन तरामीम को ऐड किया जाए। लाहौर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की सख्त मॉनिटरिंग और सज़ा व जज़ा पर काम शुरू कर दिया गया। डीसी लाहौर मोहम्मद अली के ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत न करने वाले मजिस्ट्रेट से जवाब तलबी कर ली गई। 5 मजिस्ट्रेट डीसी लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में गैर हाजिर पाए गए। LG लोकल गवर्नमेंट सैयदा तुशान फातमा, असिस्टेंट डायरेक्टर PHA वक़ार अहमद, रेवेन्यू ऑफिसर कैंट जुल्फ़कार खान, तहसील सपोर्ट्स ऑफिसर फैसल वट्टू, राव नियामत अली, स्टेट मैनेजमेंट ऑफिसर MCL, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से 3-3 में दिन में वजाहत तलब कर ली गई। बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की फहरिस्त को मुरतब करने का काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना था कि इन मजिस्ट्रेट को 1 अक्टूबर को बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। लाहौर के इलाके खुर्शीद पार्क में जुल्फ़कार लेबर लीग यूनियन CBA PHA का इजलास, यूनियन के तमाम अहदेदारों ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, खुर्शीद पार्क लाहौर में जुल्फ़कार लेबर लीग यूनियन CBA PHA का इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में जुल्फ़कार लेबर लीग यूनियन के तमाम अहदेदारान ने शिरकत की। यूनियन के इजलास में 18 अक्टूबर को PHA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास के मुमकिन फैसलों के हवाले से लाएअमल तय पाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में यूनियन के मुतालबात, डेली वेजेस मुलाजमीन की कंफर्मेशन और 50% अलाउंस की मंजूरी की सूरत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का शुक्रिया अदा करने पर इत्तफाक हुआ। मुतालबा मंजूर न होने की सूरत में 18 अक्टूबर को ही 3 से 4 हजार मुलाजमीन के साथ धरना देने का फैसला भी किया गया है। जी सलमान शाह, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डायरेक्टर LPRI बहादुर नगर ओकाड़ा और डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक तहसील जहानिया के ज़ेर एहतमाम जहानिया में मवेशी पाल हजरात के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम ADP स्कीम के हवाले से एक रोज़ा आगाही प्रोग्राम, महकमा लाइव स्टॉक के ऑफिसर्स और क्वालिफाइड फर्मों के नुमाइंदगान ने शुरका को महकमा की तरफ से साइलेज मशीन के 3 लाख रुपए पर सब्सिडी पर फरहमी के हवाले से आगाह किया। महकमा लाइव स्टॉक के अफसरों ने ज़मींदारों को साइलेज का जानवरों की खुराक में अहमियत बारे आगाह करना, जिसमें ज़मींदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की और महकमा के इस इकदाम को सराहा। लाहौर DHA फ़ेज़ 5 में चाइनीज़ की जानिब से 5000 साल पहले की सकाफत मुतारिफ़ करवाने के रंग तकरीब का इनेकाद किया गया। चाइनीज़ ने अपना 5000 साल पहले किया चीरो कल्चर सकाफत मुतारिफ़ करवाने और चाइना इंटेंजल कल्चर मुतारिफ़ करवाने के लिए तकरीब का अहतमाम किया, जिसके मेहमान खसूसी चाइना के जनरल कौंसल मिस्टर झारू शेरन थे। तकरीब में 5000 पहले के सकाफत पर फ़र्जी 5000 साल पुरानी अशिया रखी गई। चाइना के जनरल कौंसल मिस्टर झारू शेरन ने फ़र्जी नुमाइश भी देखी और इस मौके पर पाकिस्तान चाइना शेंदुइंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट मिस चिंग शाओनो का कहना था कि इन चीज़ों की नुमाइश को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम 5000 साल पीछे चले गए हैं और मैं तमाम पाकिस्तानी और अपने भाई चाइनीज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ और मुझे अपनी पुरानी सकाफत को देखकर लुत्फ़ अंदोज़ होने वाले चाइनीज़ को देखते हुए बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती बेमिसाल है। आज जो नुमाइश का इनेकाद किया गया, इससे दोनों ममालिक के सकाफती कल्चर को फ़रोग़ मिलेगा। नुमाइश में रखे गए मौसीकी के आलात की धुन बजाई गई, जिसमें पाकिस्तानी और चाइनीज़ ने खूब लुत्फ़ उठाया। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर कब्ज़ा माफिया से सरकारी ज़मीन को वागज़ार करवाने के लिए मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार इमरान सफ्दर ने टीमों के हमरा मौसा हरबंसपोरा में
कार्रवाई की। आपको बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया लाहौर कब्ज़ा माफिया से सरकारी ज़मीन को वागुजार करवाने के लिए मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार इमरान सफदर ने टीमों के हमरा मौज़ा हरबंसपुरा में कार्रवाई की। आपको बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया लाहौर कब्ज़ा माफिया के सरकारी ज़मीन को वागुजार करवाने के लिए मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार इमरान सफदर ने टीमों के हमरा हरबंसपुरा में कार्रवाई की। आपको बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया लाहौर कब्ज़ा माफिया से सरकारी ज़मीन को वागुजार करवाने के लिए मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार इमरान सफदर ने टीमों के हमरा मौज़ा हरबंसपुरा में कार्रवाई की। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया लाहौर कब्जा माफिया के खिलाफ जो है वो सरगर्म हो गई है। कब्जा माफिया से सरकारी जमीन को वागुजार करवाने के लिए मुतहरिक हो गई है। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार इमरान सफदर ने टीमों के हमरा हरबंसपुरा में कार्रवाई किया। सरकारी जमीन को वागुजार करवाया गया। 5 ऑपरेशन किए गए हैं। एक कनाल 15 मरले सरकारी जमीन जो है उसको कब्जा माफिया से छुड़ाया गया, जबकि जमीन की कुल मालियत जो है 21 मिलियन बनती है। 5 बिल्डिंग स्ट्रक्चर को गिरा दिया गया है। पहले ऑपरेशन में एक हवेली को मस्मार करवाया गया, 12 मरले सरकारी जमीन को वागुजार कराया गया। दूसरे ऑपरेशन में एक जेर तमीर घर को गिराकर 5 मरला सरकारी जमीन को वागुजार करवाया है। एक बाउंड्री वाल को गिराया गया और 5 मरला सरकारी वो गिराया गया। और उसके बाद चौथे ऑपरेशन में 5 मरला सरकारी जमीन को वागुजार करवाया गया। 5वें ऑपरेशन में 2 मरला और एक कमर्शियल दुकान को मस्मार करवा दिया गया। जबकि डीसी लाहौर का कहना था कि सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जे की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। जी जुनेद अशरफ, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर में सदर बैलेंसिंग लेडीज़ क्लब फाखरा जावेद के ज़ेर एहतमाम तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में गवर्नर लायंस क्लब वसीम, शफीउल्लाह, इमरान, हफीज़ अस्मा, शाहिद और खिदमत फाउंडेशन से बाबर हमीद ने शिरकत की। इस मौका पर शरका का क्या कहना था, आइए जानते हैं। आज का ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये मेरी बेगम लाहौर ब्लेसिंग लेडीज़ लाइन क्लब की प्रेसिडेंट है। और जो आपका स्पेसिफिक सवाल है कि लेडीज़ को आगे आना चाहिए, मेरी बेटी इस वक्त हॉलैंड में है और वो भी वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि लेडीज़ को हर काम में आगे आना चाहिए। जब तक लेडीज़ आगे नहीं आएंगे ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। आसमा शाहिद और मैं लाहौर ब्लेसिंग लेडीज़ लायंस क्लब में चेयरपर्सन हूँ। और जो हमारी प्रेसिडेंट हैं फाखरा जावेद, उन्होंने ये आज का इवेंट रखा है। प्रेजेंटेशन उन्होंने की है और मैंने उनकी हेल्प की है बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा जो है जितना भी यहाँ पर मेंबर्स आए उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और सलाम में जिस तरह हमने देखा है कि मुझे नहीं पता चला कि कैसे मेरे घर में दरवाज़ा नॉक होता था और कोई मुझे कितने थाउजेंड भेज रहा है और मुझे कह रहे थे नंबर दो। मेरे घर में बाहर अलखिदमत वाले आते थे और मेरे ट्रक जाते थे भर के जब सामान के, तो मुझे मेरे नेबर्स पूछते थे कि लाहौर में अदाकार ताहिर नौशाद के बेटे की दावत वलीमा, तारिक टेडी, हसन अब्बास, लिखारी खलील रहमान कमर, अदाकारा मेघा, सलीम अलबेला, ताहिर अंजुम व दीगर ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अली नासिर से। जी मोहम्मद अली नासिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, स्टेज के नामवर अदाकार ताहिर नौशाद के बेटे की वलीमे की तकरीब के अंदर नामवर कॉमेडियन ने शिरकत की। इसके अलावा पाकिस्तान के नामवर राइटर खलील रहमान कमर भी शरीक हुए और गुलाम मोहिउद्दीन जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर हैं उन्होंने भी शिरकत की। और इसके अलावा जो कॉमेडियंस में शामिल हैं उनमें तारिक टेडी हो गया, ताहिर अंजम और इसके अलावा नसीम विकी की फैमिली यहाँ पर आई थी और कई और दीगर भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने जब शादी हॉल पहुंचे तो इस पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद उनसे सेल्फियां बनाने में मसरूफ हो गई। आप वीडियो में देख भी सकते हैं किस तरीके से तारिक टेडी और सखावत नाज जो कि कॉमेडी के किंग भी जिन्हें कहा जाता है, उनको मदाहों ने देखने के बाद सेल्फियां उतारना शुरू कर दी और काफी यहाँ पर माहौल खुशगवार रहा। इसके अलावा जब शादी स्टेज के ऊपर पहुंचे तो एक दूसरे के साथ जुगबाजी लगाते रहे। वहाँ पर खवातीन भी मौजूद थी, वो खूब उनकी जुगतों से उन्होंने हंसी भी, लुत्फअंदोज़ भी और शादी का जो माहौल था उन्होंने बड़ा ही खुशगवार कर दिया था। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें भी खेल दी थी क्योंकि ज्यादातर कॉमेडियन वहाँ पर आए हुए थे। जबकि पाकिस्तान के नामवर राइटर खलील रहमान कमर भी ताहिर नौशाद के बेटे की वलीमे की तकरीब में शरीक हुए थे। इसके अलावा राइटर वसी शाह जो कि बुक्स राइटर हैं, उन्होंने भी
शादी की तकरीब में शिरकत की। ये सारे वहाँ पर अहवाल की सूरत हाल थी। मोहम्मद अली नासिर, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद और उनके भाई शेख सद्दीक को लाल हवेली खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की कब्जा माफिया के खिलाफ मुहिम के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर जिला रावलपिंडी व चकवाल की जानिब से जारी किया गया। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के मुताबिक मज़कूरा प्रॉपर्टी में शेख रशीद अहमद और उनके भाई काबिज हैं। बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी में 18वीं कन्वेंशन का इनेकाद, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, तलबा व तलबात में असनाद तकसीम की गई। मज़ीद जानते हैं उसामा मुगल की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान ने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के 18वें कन्वेंशन में कामयाब तलबा व तलबात में मेडल्स व डिग्रियाँ तकसीम की। तो हमें हमेशा इंशाअल्लाह जारी अल्हम्दुलिल्लाह शहर बहावलपुर अपने कुतुब खानों, मोहल्लात, अजीम तालीमी इदारों की वजह से खास पहचान रखता है और मुमलिकत इक़्तिदार की तामीर और तरक्की में इसका किरदार हमेशा अहमियत का हासिल है। पाकिस्तान के क़याम में नवाब और बहावलपुर रियासत का जो किरदार रहा वो कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान की तरक्की में बहावलपुर के अंदर से जो ह्यूमन रिसोर्स स्कूल की तरक्की में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे साइंस हो, चाहे हमारी आर्म फोर्सेज हों, हर शोबा जिंदगी में बहावलपुर इस खित्ते के लोगों ने अपना किरदार अदा किया। यहाँ के तालीमी इदारों में बेहतरीन माहिर तालीम, अदीब व शायर, खिलाड़ी, साइंसदान पैदा किए। इसने कौमी और बैन अवी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पतौकी में मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं मियाँ आसिफ सईद की इस रिपोर्ट में। अक्टूबर के पूरे महीने को पिंक रिबन के तौर पर मनाया जाता है, ताहम ख़वातीन में बढ़ते हुए छाती के सरतान के हवाले से पतौकी में मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के ज़ेर एहतमाम म्यूनसिपल कमेटी ग्राउंड में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से जमात अहले हदीस के मुमताज़ उलमाए किराम के साथ हज़ारों अफराद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर ने खुसूसी शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के अमीर प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर ने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नज़रिया पाकिस्तान के मौजू पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना किरदार अदा करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुसलमानों के लिए मशअल राह है। ख़त्म नबूवत में मुसलमानों के बुनियादी अकायद और नज़रियात एक हैं। फूलनगर के मेडिकल कॉलेज में सेमिनार का इनेकाद किया गया। छाती के कैंसर से बचाव के हवाले से आगाही दी गई। असातिज़ा और तलबा तलबात ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अब्दुल सत्तार साकी की इस रिपोर्ट में। अक्टूबर के पूरे महीने को पिंक रिबन के तौर पर मनाया जाता है, ताहम ख़वातीन में बढ़ते हुए छाती के सरतान के हवाले से पाक रेड क्रिसेंट मेडिकल कॉलेज दीनानाथ में सेमिनार और वाक़ का एहतमाम किया गया। सेमिनार में शौकत खानम हॉस्पिटल से डॉक्टर मकबूल शाहद, डॉक्टर असद परवेज़ और डॉक्टर अबू बकर शाहद ने तलबा और तालिबात को ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर बारे आगाही फराहम करते हुए कहा कि ख़वातीन को हर 3 माह बाद अपना चेकअप करवाना चाहिए। ख़वातीन अपना मुआयना खुद से करें। अगर छाती में गिल्ट या रसौली महसूस हो तो फ़ौरन डॉक्टर से मुआयना करवाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के केसों में ख़तरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। ख़वातीन को इस बीमारी बारे आगाही इंतहाई ज़रूरी है ताकि ब्रेस्ट कैंसर की इब्तिदा में ही रोकथाम की जा सके। सेमिनार में डॉक्टर लतीफ़ इकबाल, MS, डॉक्टर शाहिद महमूद, प्रोफेसर डॉक्टर किशोर। हरिपुर में टाइफाइड से बचाव की मुहिम, 40,000 से ज़्यादा बच्चों को टाइफाइड से बचाव के टीके लगाए गए। मज़ीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर में टाइफाइड से बचाव की मुहिम का आगाज जारी है। हरिपुर की 6 यूनियन काउंसिलों में 9 माह से 15 साल के 40,000 से ज़्यादा बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसी हवाले से महकमा सेहत
सरफराज अमन ने कोई नूर न्यूज से बात करते हुए कहा। DHO महकमा सेहत की तरफ से आए हैं, ये टाइफाइड की वैक्सीन लगा रहे हैं। आज बल्ला पत्तन में हमारा आखिरी दिन है। ये जो टाइफाइड की जो मुहिम थी 3 तारीख से शुरू हुई है और ये 12 दिन की कैंपेन थी। तो ये यूनियन कौंसिल सेंट्रल में और साउथ में, नॉर्थ में और सिकंदरपुर और तरबेला में शुरू हुई है और तकरीबन हमने जो टारगेट दिया गया था वो हमने अचीव कर लिया है। और इसका जो इंजेक्शन लगा रहे हैं इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मामूली सा बुखार हो सकता है या उधर जो भी तकलीफ़ हो थोड़ी बहुत, तो उसके लिए पैनाडॉल का शरबत लेना। सूबाई वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि PTI ने आज कराची में ज़िमनी इंतख़ाबात के मौका पर खुलेआम बदमाशी की। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर MPAs, MNAs और क्रिमिनल अनासर हथियार लेकर गुंडागर्दी करते रहे, मासूम वोटर्स को धमकाते और डराते रहे। उन्होंने कहा कि अफसोस का मकाम है कि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की सरेआम धज्जियाँ उड़ाई गईं। गाड़ियों के जुलूसों से पोलिंग अमले को हिरासा किया गया लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि PTI की इस गुंडागर्दी का नोटिस लिया जाए। मासूम वोटर्स को हिरासा करना ज़्यादती है। इमरान खान ने शिकस्त के खौफ से हर हरबा इस्तेमाल किया। लकी मरवत के नवाही इलाके में निजी फलाही तंजीम का अहसन इकदाम, सलाम मुतासिरीन में राशन तकसीम किया गया। मजीद जानते हैं शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। लकी मरवत के इंतहाई पसमानदा इलाका वांडा बगनी और मुल्हिका वांडा जात में शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने सैलाब से मुतासरा 2 दर्जन से जायद खानदानों में राशन तकसीम किया। राशन में आटा, चीनी, घी, चाय की पत्ती और दालें शामिल थे। इस मौके पर अहले इलाका का कहना था कि वांडा बगनी एक इंतहाई पसमानदा इलाका है और सैलाब गुजरने के बाद शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पहली तंजीम है जिन्होंने यहाँ आकर हमारी मदद की है। हालांकि इस वक्त तक हुकूमत की जानिब से भी हमें कोई इमदाद नहीं मिली है। शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अली शाह का इस मौके पर कहना था कि इलाके की हालात देखकर यहाँ के अवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा हो गया। हमारी तंजीम का मकसद ही ऐसे इलाकों के फलाही काम के लिए काम करना है। उनका मज़ीद कहना था कि हम खिदमत फ़र्ज़ इबादत समझकर करते हैं। अगर एक माशरे में कोई इंसान तकलीफ़ में है और वहाँ के लोग। शांगला के मकामी स्कूल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। असातिज़ा, तलबा और तालिबात और वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। शांगला हिल्स मॉडल स्कूल करोड़ा में यौम वालिदैन और सालाना तकसीमी इनामात के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में स्कूल के बच्चों, वालिदैन और महकमा तालीम से वाबिस्ता अफराद ने शिरकत की। यौम वालिदैन तकरीब से खिताब करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर शांगला हिल्स मॉडल स्कूल करोड़ा अल्ताफ हुसैन गुलाब का कहना था कि 1995 में जिस उम्मीद और जज्बे के साथ शांगला हिल्स मॉडल स्कूल के नाम पर जो पौधा बोया था, आज वह एक तनावर दरख्त में तब्दील हो गया है। शांगला हिल्स मॉडल स्कूल करोड़ा से फारिग तहसील तलबा आज भी मुख्तलिफ शोबों में आला मनसबों पर फाइज है। उन्होंने कहा कि तालीम के बगैर तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। तालीम ही के जरिए मुआशरे में मस्बत तब्दीलियाँ रुनमा हो सकती है। यौम वालिदैन तकरीब से सुपरवाइजिंग डायरेक्टर शांगला हिल्स मॉडल स्कूल करोड़ा सैयद साजिद शाह का कहना था कि दुनिया 21वीं सदी में दाखिल हो चुकी है। आज का दौर तालीम और जदीद टेक्नोलॉजी का है। फरसुदा निज़ाम तालीम का खात्मा वक़्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि शेरों को मायरी और क्वालिटी एजुकेशन की फराहमी अवलीन तरजीह है। सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज़ सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर में हिजरत रसूल पाक के नकूश के उन्वान से मुनक़िद करदा नुमाइश में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन की एक कॉपी और ड्राइंग की नुमाइश की गई। मराकश के मशहूर मुहद्दिस इब्ने असाकर के मुताबिक ये नुस्खे आमतौर पर इस्लामी दारुल हुकूमतों में उलमाए हदीस को तकसीम किए जाते हैं, जहाँ उलमा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अहादीस को महफूज करने और मुंतकिल करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।